Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 5. Hope you all are fine and doing your work. As you all know that we are doing the fractions and we have completed exercise 3A, B, C. Now we have to start at the exercise 3D. In this exercise, we are having application of the BODMAS rule. BODMAS, you all know that what is the BODMAS? BODMAS means we have to solve the question step by step by following this sequence. Okay, first of all, we have to solve the brackets. Then we have to do the division, multiplication, addition and subtraction. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये पता है, पहले भी आप BODMAS को जो है वो फॉलो कर चुके हैं. अगेन इन दिस फ्रैक्शन वी हैव टू फॉलो द BODMAS. BODMAS में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स हैं तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं. Then after that we have to do the division, then multiplication, then addition and then subtraction. Okay, we have to follow this sequence to solve the question according to the BODMAS rules. So according to this, we are having some questions of exercise 3D, question number 4, part A. Here 2 upon 5 plus 3 upon 5 minus 5 upon 9 divided with 25 upon 9. So according to the rule, first of all, we have to divide the terms. First of all, we have to divide the terms. So in this question, these two terms are divided. As you can see that 5 upon 9 divided with the 25 upon 9. 5 upon 9 divided with the 25 upon 9. ये दो terms यहाँ divide हो रही है. First of all, we have to do the division. सबसे पहले हमें यहाँ division करनी है. और अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि डिवीजन करने के लिए सबसे पहले हमें इस डिवीजन के साइन को किसमें चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन में. एंड बाय चेंजिंग दिस साइन वी हैव टू रेसिप्रोकल द नेक्स्ट टर्म. उसके बाद जो भी नेक्स्ट टर्म है आपको उसका रेसिप्रोकल लेना है. ठीक है, इन दिस स्टेप we have to convert the division into the multiplication, and after that we have to take the reciprocal of this term, that is 25 upon 9. So here we have to write a 9 upon 25. अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिवीजन बताया था, बिल्कुल उसी तरह से उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपने डिवीजन करनी है. ठीक है जी, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद की जो भी टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल लेंगे. Then after that we have to do the cross multiplication. Here 9 ones are 9 and 9 ones are 9. 5 ones are 5 and 5 fives are 25. 5 fives are 25. Now 1 ones are 1 and 5 ones are 5. What we get? 1 ones are 1 and 5 ones are 5. Now it is 1 upon 5. Now the next thing which we have to do after the division is the मल्टीप्लीकेशन, बट देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन. इस क्वेश्चन में कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, बिकॉज आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एडिशन विल कम. सो हियर we have opened the bracket 2 upon 5 plus 3 upon 5 minus 1 upon 5. हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और जो हमें नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है वो है एडिशन का. अब आप यहाँ देख रहे हैं एडिशन हमने अपनी फिजिकल क्लासेस में भी किया है, सब्ट्रैक्शन भी हमने अपनी फिजिकल क्लासेस में किया है कि जब डिनोमिनेटर्स, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, इफ they are changed then we have to take the LCM, but here the denominators are same. यहाँ denominators same हैं तो हम numerator को directly add कर सकते हैं. हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो हम न्यूमरेटर को यहाँ डायरेक्टली ऐड करेंगे. 2 plus 3 which will be equal to 5. 2 plus 3 is equals to 5 upon 5. हमने डायरेक्टली ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है. क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते तो फिर हम LCM लेते. ठीक है जी, 5 upon 5 माइनस 1 upon 5 आपका यहाँ पे एज इट इज आ गया. 5 ones are 5 and 5 ones are 5. कटिंग हो जाएगी आपकी, यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह जाएगा. 1 minus 1 upon 5. Now the last step which we have to do is the subtraction. 1 minus 1 upon 5. Now the denominators are changed here. ठीक है जी, यहाँ पे denominators आपके चेंज है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 1. 1 और 5 का जब आप LCM लेंगे तो आपके पास LCM आएगा 5. Now 5 ones are 5 and 5 की टेबल में 5 वन टाइम पे आता है, तो 1 ones are 1. 5 minus 1 is equals to 4 upon 5. 4 upon 5, that is your answer. Okay students, in this way you have to solve the questions which is given in the exercise 3D. You have to simplify the question by following the BODMAS rule. BODMAS क्या है, इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ये
ऑपरेशंस फॉलो करने हैं, लाइक सबसे पहले आपको डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 ऑपरेशंस करने के लिए दिए हैं, बट यू हैव टू फॉलो द रूल एंड देन यू हैव टू solve the question. Again, I just do it over here, the division, first of all the division, then addition because यहाँ पे multiplication नहीं थी, और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम अपनी फिजिकल क्लासेस में भी कर चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह से करनी है। डिवीजन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और उसकी बाद वाली टर्म का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इफ द क्रॉस कटिंग और मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल देन वी हैव टू डू दैट, otherwise we will take the answer as it is. Okay students, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। इसके अलावा मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आपके होमवर्क असाइनमेंट में मेंशन किए हैं, ये सब आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।